हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरपी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फेस ट्रिक। आज जो मैं पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ जेई मेंस का, वो 26 फैब 2021 मॉर्निंग शिफ्ट की है। पेपर जितने भी पेपर मैंने देखे बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, आपको केवल सब्जेक्ट की प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जब पेपर देकर आप खुद प्लान आउट कर लोगे कि हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो हमें स्टार्ट हम जैसे करें, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? A planet revolving in an elliptical orbit has first option is constant velocity of revolution, second has a least velocity when it is nearest to the sun, third is its aerial velocity is directly proportional to velocity, third is aerial velocity inverse of velocity, aerial velocity is inversely proportional to velocity. To follow the trajectory such that aerial velocity is constant. This is the Kepler's second law. Aerial velocity is constant. Aerial velocity is constant. And this is Kepler's second law. Second question. The normal density of the material is rho and the bulk modulus of elasticity is K. The magnitude of increase in density of the material when the pressure P is applied uniformly on all sides. हमें given है the normal density this is equal to mass upon volume. हमें क्या बोला? The magnitude of increase in density of the material. इसे हम लिख सकते m v माइनस वन। अगर हम d रो को हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो दिस इज इक्वल टू m इज कांस्टेंट माइनस वन v माइनस ऑफ टू मीन्स लाइक माइनस ऑफ m v माइनस ऑफ टू। तो d रो इज माइनस m v माइनस टू इंटू d। इक्वेशन फर्स्ट and this is the equation second divided by first, d rho by rho, this is equal to minus m v minus 2 into dv upon m v minus of 1, m to m cancel, minus of v minus 1 into dv, this is equal to minus of dv by v, this is equal to d rho by rho। अब हमें कैलकुलेट करना है the magnitude of increase in density of the material when the pressure P is applied uniformly and K is the bulk modulus, means K is P upon minus of dV by V. Minus of dV by V is equal to d rho minus of P into K की टर्म में हमें लेना है और d रो की वैल्यू लाइक dv बाई v अगर हम लेते हैं, क्योंकि जो चॉइस है उसमें वॉल्यूम नहीं है, लाइक k अपॉन k माइनस p एंड dv बाई v इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई v इज इक्वल टू d रो बाई रो। तो अगर d रो हम लेंगे तो P इंटू रो बाई के, P इंटू रो बाई के, दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, if lambda 1 and lambda 2 are the wavelength of the third member of the Lyman series and the first member of the Paschen series, lambda 1 by lambda 1 third member of Lyman series are n1 square minus of n2 square. First member n1 is equal to 1, n2 is equal to 2. Second member n1 is equal to n, n2 is equal to 3. Third member n1 is equal to 1, n2 is equal to 4. Means 1 by lambda is r1 4 का square, means r 1 minus of 1 by 16 15 r
by 16 is 1 by lambda. Lambda 1 means lambda 1 this is equal to 16 by 15 r. Or lambda 2 denote the first member of partial series means 1 by lambda 2 r 1 by Lyman, Balmer and partial. N1 की वैल्यू 3 तो N2 इज 4 क्योंकि फर्स्ट मेंबर होने चाहिए। R 1 by 9 1 by 16 R 16 into 9 9 से 16 minus of 9 R 7 by 16 into 9 1 by lambda 2 means lambda 2 is 16 into 9 by 7 R. तो हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा 1 by लैम्डा 2। लैम्डा 1 is 16 by 15 r into 7 r by 16 into 9 r to r cancel 7 upon 15 into 9 means 10135। next fourth question। Next is fourth question। फोर्थ क्वेश्चन हमें है, हमें डायग्राम गिवन है, हमें सिंप्लीफाई करना है डायग्राम और आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये ए और बी दो टर्मिनल है। फर्स्ट में जो गिवन डायग्राम है उसे मैं ड्रॉ कर दूं। लाइक ये पॉइंट है डी, यहां से एक रेजिस्टेंस लेंगे, ये पॉइंट है ई, यहां से एक रेजिस्टेंस लेंगे, ये पॉइंट है सी, यहां से एक रेजिस्टेंस लें, यहां से एक रेजिस्टेंस लें, यहां से एक रेजिस्टेंस, ये टर्मिनल ए, एक टर्मिनल है आर आर आर। इसे उठाकर यहां से यहां रखते हैं। अगर हम यहां से यहां इसको उठा के रखें तो ये साइड ऐसे ऐसे बन जाएगी और ये बीच में आ जाएगी। तो हम इसे डी लेते हैं और यहाँ ई लिया, डी से ई में एक रेजिस्टेंस आर, यहाँ पॉइंट हम ए ले रहे हैं, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये आर और आर सेम डी ई के बीच में एक आर ले रहे हैं। आर आर और ये पॉइंट है। अगर हम इसे देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस अपॉन दिस का रेशियो दिस अपॉन दिस, ये रिमूव हो गए तो हमें बचेगा आर आर टू आर 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 टू आर। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी दिस इज इक्वल टू 2r into 2r अपॉन 4r। आर से आर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे अगर हम 5th क्वेश्चन को लेते हैं तो हमें गिवन है लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप इच ऑफ रेडियस आर कंबाइंड टू हैव ए ड्रॉप ऑफ रेडियस बिगर, कंबाइंड होकर बिगर ड्रॉप आर में कन्वर्ट हो गए। इफ द सरफेस टेंशन इज टी एंड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज जे, जे मीन्स 4.2 जूल,
the range in heat energy per unit volume will be. फर्स्ट हम मर्जिंग का केस ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू m टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर. वॉल्यूम ऑफ बिगर इज 4/3 pi r cube. m times of 4/3 pi r means bigger is bigger n to the power 1/3 into a smaller. अब चेंज इन एरिया, सरफेस एनर्जी U होती है, दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. दिस इज इक्वल टू T, चेंज इन एरिया इज n times area of smaller minus of area of bigger. Area of bigger T n times smaller 4 pi r minus of 4 pi bigger. This is equal to T. n is equal to, अगर हम n की वैल्यू ले तो दिस इज इक्वल टू r क्यूब बाई r क्यूब इंटू 4 pi r स्क्वायर माइनस ऑफ 4 pi बिगर का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, एक r से यहाँ r कैंसिल. अब हमें अगर r स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, r स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, t इंटू r स्क्वायर कॉमन ले, तो ये आ गए और इंटू 4 pi भी कॉमन लेते हैं, मीन्स 4 pi r स्क्वायर कॉमन लेते हैं. So this is equal to bigger by smaller minus of 1. This is equal to U. अगर हमें U by J करते हैं तो हीट आ जाएगा जब कैलोरी में. U by J. This is equal to T into 4 pi R square. 4 pi R square by J R by R minus of 1. अब हमें कैलकुलेट करना पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स दिस इज इक्वल टू H आ गया, U by J इज H एंड दिस इज इक्वल टू T इंटू 4 pi R स्क्वायर इंटू R बाई R माइनस ऑफ H बाई V T 4 pi R स्क्वायर 4 बाई 3 pi R क्यूब बिगर बाई स्मॉलर माइनस ऑफ 1. तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 3 बाई आर इनटू बिगर बाई आर माइनस ऑफ 1. दिस इज इक्वल टू 3t भी है, 3t और j भी है, j अपॉन j, यहाँ भी j है, यहाँ भी j है, और 3t बाई j 1 बाई r से मल्टीप्लाई, तो 1 बाई स्मॉलर माइनस ऑफ 1 बाई बिगर. दिस इज इक्वल टू हीट पर यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. A straight object of height 100 centimeter lie between the central axis of the spherical mirror whose focal length has an absolute value of 40. The image of the object produced by the mirror is of the height of 25 and have same orientation of the object. One may conclude from the information, means दोनों एक ही साइड में है, इसका मतलब जो इमेज होगा, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट
स्फेरिकल मिरर है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेम साइड में, तो हमें जो यहां जो बनेगी द इमेज द सॉर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन है, lie before the central axis of the spherical mirror whose focal length has absolute value of 40। वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर फोकल लेंथ को डिफाइन नहीं किया गया, बट ये तो क्लियर है कि जो मिरर होगा, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज अगर बन रही है, इट मीन्स द मिरर इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होगा तभी वर्चुअल होगा। वर्चुअल वन में कंक्लूड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन और सेम साइड में बन रही है। द इमेज क्लियर है कि वर्चुअल कॉन्वेक्स ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स में ही वर्चुअल बनेगा। द इमेज इज वर्चुअल opposite side of a convex mirror, क्योंकि वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स में ही बनेगी। 7th क्वेश्चन, the temperature theta at the junction of two insulating sheets having thermal resistance R1 and R2 well as top and bottom temperature theta 1 and theta 2 in the given figure। अब हमें यह नोट नहीं है कि थीटा 1 थीटा 2 से बड़ी है, तो हम किसी एक को थीटा 1 या थीटा 2 में से एक को बड़ी ले लेते हैं। तो अगर हम कॉमन जंक्शन टेम्परेचर अगर हम कैलकुलेट करें तो हीट फ्लो रेट तो कांस्टेंट है, तो हमें कैलकुलेट करना है थीटा की वैल्यू। तो अगर हम हीट फ्लो रेट देखें, लाइक ये डायग्राम हमें गिवन है, ये R2 और ये R1, ये थीटा जंक्शन, ये थीटा 2, ये थीटा 1। तो हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम रेट ऑफ हीट फ्लो देखें, मीन्स डेल क्यू बाई डेल्टा टी, और सीरीज में है तो ये तो वैल्यू इक्वल होगा के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, मीन्स डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स बाई के इंटू मीन्स डेल्टा टी बाई आर। बट हीट फ्लो रेट अगर हम यहां से फ्लो देखते हैं तो थीटा 2 मोर देन थीटा 1, तो हम इसे लिखेंगे हीट फ्लो रेट तो सेम है, डेल क्यू बाई डेल्टा टी 2 डेल क्यू बाई डेल्टा टी 1 मीन्स के डेल्टा टी सेकेंड के लिए तो लेंगे थीटा 2 माइनस थीटा अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 1 अपॉन R1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स R1 थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू R2 थीटा माइनस ऑफ थीटा 1, R1 थीटा 2, R1 थीटा, R2 थीटा, R2 थीटा 1, इसे हम लेफ्ट में लाएं, R1 थीटा 2, R2 थीटा 1 इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 इंटू थीटा, मीन्स थीटा दिस इज इक्वल टू R1 थीटा 2, R2 थीटा 1 by R1 plus of R2. This is the junction temperature. Next, क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट मेजरमेंट से क्वेश्चन है। हमें वर्क डन गिवन है W दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा E माइनस ऑफ बीटा इंटू एक्स स्क्वायर बाई के इंटू टी, और के इंटू टी इज द एनर्जी मीन्स के इंटू टी बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, और एनर्जी है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2
beta into L square. It means beta is mt minus of 2 और ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, मीन्स वर्क डन दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा, तो W इज m L स्क्वायर t माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज m t माइनस ऑफ 2 m t माइनस 2, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इज L मीन्स अल्फा इज इक्वल टू L, तो हमें कैलकुलेट करना है dimension of alpha, this is equal to L means m0 L t0. Next question number 9. Ninth question में assertion region हमें given है. An electron microscope can achieve better resolving power than an optical microscope, this is the correct, and the de Broglie wavelength of electrons emitted from the electrons gun is much less than the wavelength of visible light. This is also the correct answer. Next, both are the correct. And A and B are the true value, but A and B are the correct, and R is the correct explanation of, means यहाँ पर both A and R are true and R is the correct explanation of it. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. 10th question. Consider the combination of two capacitors C1 and C2 with C2 is greater than C1 when connected in parallel. ठीक है, पैरेलल में अगर हम लेंगे तो C1 into C2 by C1 plus of C2, and this is equal to 15 by 4 times connected in parallel. Parallel means C1 plus C2 is equal to 15 by 4 times the equivalent capacitance in series. C1 C2 by C1 plus of C2. Then the ratio C2 by C1. अगर हमने इसे C1 plus of C2 का whole square by C1 into C2 is 15 by 4. अगर हम इसे एक्सपैंड कर दें तो लाइक C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 इज 15 by 4, मीन्स C1 से एक C1 तो C1 by C2 प्लस ऑफ C2 by C1 प्लस ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 15 by 4. This is equal to C1 by C2 को अगर मैं x लेता हूँ तो ये 1 by x प्लस of 2 is equal to 15 by 4. 15 by 4. तो LCM अगर ले लें तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2x is equal to 15x by 4. ये हमारा बन रहा है। अगर हम इसे एलसीएम लेते हैं like 4x square plus of 4 plus of 8x is equal to 15x, means 4x square minus of 7x plus 4, this is equal to 3.
माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 4. This is equal to 7 plus minus 49 minus of 64 by 8. Means this is the complex, means the choice is incomplete. This is the incomplete choice. Next question is question number 11. अगर हम 11 क्वेश्चन को देखें, alternating current is given by the equation I this is equal to I1 sin of omega t plus I2 cos of omega. I1 को हम लेते हैं like I naught cos theta and I2 is I naught sin theta. Then I this is equal to I naught sin omega t cos theta. I naught cos omega t sin theta. This is equal to I naught sin omega t plus of theta. अगर हमें I naught चाहिए तो स्क्वायरिंग और एडिंग, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर इज इक्वल टू I naught का स्क्वायर. तो यहां से अगर हमें I naught की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस ऑफ I2 स्क्वायर. तो I हमें फाइनल अगर मिलेगा तो अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस ऑफ I2 का स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ थीटा. दिस इज द पीक वैल्यू. हमें जो कैलकुलेट करना था आरएमएस वैल्यू, ये पीक है. तो आई आरएमएस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस ऑफ I2 स्क्वायर बाई 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. 12th क्वेश्चन में गिवन है 4 identical spheres each of mass m and radius a are placed with their center on the 4 corner of a square of the side B. The moment of inertia of the system about one side of the square whose axis of rotation is parallel to the plane of the. हमें स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड है बी, साइड इसकी बी, ये बी है, ये बी है, ये बी, और 4 कॉर्नर पर 4 स्फीयर और इसके रेडियस है ए, रेडियस ए और ए. लाइक हमें दिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर हमें जो एक्सिस है x और x डैश के, तो I x डैश दिस एक्सिस पर इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रहे हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो स्फीयर के लिए हम लेंगे 2/5 m a स्क्वायर. सेम दिस स्फीयर 2/5 m a स्क्वायर. दिस स्फीयर अपने एक्सिस के अबाउट, हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसके सेंटर के अबाउट कैलकुलेट करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लें. तो थर्ड स्फीयर में अगर हम देखें तो 2/5 m a स्क्वायर प्लस ऑफ m सबके मास है, अब b दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, तो m d स्क्वायर प्लस दिस स्फीयर के लिए भी सेम होगा, तो इसको हम ट्वाइस कर दें.
So this is equal to 2 by 5, 2 by 5. Twice means 4 times of 2 by 5 MA square plus of twice of MB square. This is equal to 8 by 5 MA square plus 2 MB square. This is the moment of inertia. Next, question number 13. हमें 13 क्वेश्चन में गिवन है LED is constructed from gallium arsenide P semiconductor material. The energy gap of this LED is 1.5 electron volt. Calculate the wavelength of the light emitted by its color. अगर हम यहाँ से एनर्जी हमें गिवन है E is 1.9 electron volt means 1.9 into 1.6 into 10 raised to power minus of 19 joule. So lambda this is equal to E is hc by lambda means lambda is hc by E. So lambda this is equal to h is 6.6 minus of 34. 3 into 10 raised to power 8, 1.9, 1.6, 10 raised to power minus 9. ये हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अराउंड 654 nanometer and this is the wavelength of a red color. Next question. Question number 14. 14th question में in young double slit experiment the two slits are separated by 2 mm means a small d हमें given है 2 mm means 2 into 10 raised to power minus 3 meter and the screen is placed 1 meter. Big D this is equal to 1 meter. When a light of wavelength 500 nanometer lambda this is equal to 500 nanometer 10 raised to power minus 9 meter. The fringe separation means बीटा करेंगे तो बीटा होता है लैम्डा बिग डी बाई स्मॉल डी. लैम्डा हमें नोन है 500 10 raised to power minus 9 into 1 2 into 10 raised to power minus 3 15. Question number 15 में हमें given है the particle is moving with a uniform speed along a circumference of a circle of radius r under the action of the central frictious force F which is proportional to r cube. The time period of the revolution means F given है directly proportional to r cube means F is equal to k into r cube. Equation first. और इसको अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए तो सेंटीमीटर फोर्स से इक्वेट करना पड़ेगा. m r ओमेगा स्क्वायर k इंटू आर क्यूब ये आर स्क्वायर मीन्स m ओमेगा इज 2 पाई बाई बिग टी का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू आर स्क्वायर m इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर k इंटू आर स्क्वायर. तो टाइम पीरियड हमें चाहिए तो टाइम पीरियड इज f हमें नोन है t स्क्वायर देन द टाइम पीरियड इज t is the particle is moving with a uniform speed along a circumference of a circle of r under the action of force F is inversely proportional to r. Sorry, मैंने directly proportional लिया. This is the inversely proportional to means F is equal to K by R cube.
with m r omega square h k by r cube. m r ओमेगा h 2 pi by dt का स्क्वायर k अपॉन r क्यूब, m r 4 pi स्क्वायर बाय t स्क्वायर k by r क्यूब, like t square is m r4 into 4 pi square by k, means t square directly proportional to r4, means t directly proportional to r square. Next question number 15. 15th question में find the gravitational force of attraction between the ring and the sphere as shown in the figure. ये रिंग है, इसकी रेडियस है r, और यहाँ एक स्फीयर है, इसकी रेडियस है बिगर, इस रिंग का मास स्मॉल है, स्फीयर का बिगर है, और ये डिस्टेंस है √8r, ये x और ये है y. If √8r is the distance between the center of the ring of mass m and sphere m, when both are equal radius, find the gravitational force of attraction between the ring and the sphere. हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है. सबसे पहले इस पॉइंट पर अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करूं, ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करके अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी. ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फॉर्मूला, जैसे इस रिंग से इस y पॉइंट पर हम फील्ड कैलकुलेट करें तो फील्ड या इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ड्यू टू रिंग अगर हम लेते हैं तो माइनस ऑफ gm x is the distance, this distance is x, upon gm into, sorry, this is equal to x, और ये डिस्टेंस होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस ऑफ 8r स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3r. तो gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर होल पावर ऑफ 3/2, x इज √r, gm माइनस ऑफ gm √8r अपॉन ये आ जाएगा 9r स्क्वायर होल पावर ऑफ 3/2, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ gm √8r बाई 3r का स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज इक्वल टू माइनस gm √8r अपॉन 27 r के. ये हमें इंटेंसिटी मिल गई. तो अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी अगर हमें नोन है तो हमें चाहिए फोर्स, तो इस मास से मल्टीप्लाई करते तो I इंटू एम मैग्नीट्यूड बाई, अदरवाइज अट्रैक्शन का नेगेटिव साइन ओनली डिनोट द अट्रैक्शन, gm 2√2 r, एक r से r कैंसिल कर लो, r स्क्वायर अपॉन 27 r स्क्वायर इंटू m, तो दिस इज इक्वल टू gm m 2√2 अपॉन 27 r स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. 15 हो गए, 16 नहीं, ये 16 था क्वेश्चन. ये था क्वेश्चन नंबर 16.
अब हम 17 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 17 क्वेश्चन है assertion region. The body P have the mass m moving with a speed u has head-on collision elastically with another body q having mass m initially at rest. If small m is very less than big M, the body q will have maximum speed equal to 2u after the collision. Big M u velocities plus of small m initially at rest. After collision, this is equal to after collision have maximum velocity at on collision with another body q m initially at rest, then after collision this is equal to its velocity is equal to, अगर हम after collision इसकी velocity देखें तो this value is big M v dash plus a small m is v. तो यहां से हमें जो कैलकुलेट करना है आफ्टर कोलिजन q मीन्स m u माइनस ऑफ v डैश इज इक्वल टू m इंटू v. अगर हम इसका एनर्जी कंजर्व करते हैं तो हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v डैश स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर. तो लाइक अगर हम इसको लेफ्ट में लाते हैं तो हाफ m u स्क्वायर माइनस ऑफ v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. हाफ टू हाफ कैंसिल, m u माइनस ऑफ v डैश u प्लस ऑफ v डैश दिस इज इक्वल टू m इंटू v स्क्वायर. u minus of m into this value, this is equal to m into v into u plus of v dash, this is equal to mv into v. mv से mv cancel means v, this is equal to u plus of v dash. For v to be maximum, for v to be maximum, v dash this is equal to u means v this is equal to 2. So both assertion and reason are the correct, and reason is the correct explanation of assertion. Both A and R are correct and R is the correct explanation. Next question, question number 18. क्वेश्चन में हमें गिवन है if two similar spring, each of the spring constant K1 are joined in series, the new spring constant and the time period would be changed by a factor. हमें क्या है, two similar spring, each of the spring constant के are joined in series, तो K equivalent आएगा K1 into K2 by K1 plus of K2.
the new spring constant and the time period would be changed by two similar spring, each of a spring constant के are joined in series. The new spring constant, the k dash, अगर दोनों सेम है, टू सिमिलर स्प्रिंग, each of a spring constant के, तो इसका मतलब हमें जो आएगा k डैश जो मिलेगा k1 into k1 upon 2k1, this is equal to k1 by k, तो ये हाफ से चेंज हो जाएगा. एंड द टाइम पीरियड, अगर t हम लेते हैं तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k1 और t डैश हम लेंगे 2 पाई अंडर रूट m k1 बाई 2, तो ये आ जाएगा रूट 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k1 इज इक्वल टू t डैश रूट 2 into t, this is equal to t dash. So this is equal to t dash by t is equal to root 2. तो हाफ से फैक्टर चेंज होगा और रूट 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Assume that a tunnel is dug along a chord of earth at a perpendicular distance r by 2 from the earth center, where r is the radius of the earth. The wall of the tunnel is frictionless. If a particle is released in the tunnel, it will execute simple harmonic with a time period. इसका रिजल्ट डायरेक्ट रखना है अर्थ टनल के लिए अंडर रूट ऑफ r by 2. क्वेश्चन नंबर 20. Find the electric field at a point P on a perpendicular bisector of a uniform charge thin wire of length L carrying a charge Q. The distance of the point P from the center of the rod edge. The distance of the point P from the center of the rod edge A. This is equal to root 3 by 2L. हमें ये रॉड गिवन है, इसकी लेंथ L है, ये P पॉइंट है, ये डिस्टेंस है A, और इस पर चार्ज है Q. तो हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगर हम एक्सप्रेशन इसका लेते हैं, जैसे कोई भी सेक्शन यहां से कट करे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डी, सेम यहां सिमेट्रिकली यहां से हम सेक्शन कट करें तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डी. इफ दिस एंगल इज थीटा मींस दिस एंगल इज थीटा, मींस अगर दो हम लेंगे तो दिस एंगल ये थीटा, दिस एंगल ये थीटा, तो डी साइन थीटा ऊपर, डी कॉस थीटा नीचे, मींस ई नेट अगर हम लेते हैं तो 2DE cos थीटा इंटीग्रेट, ये ओरिजिन है टोटल L, तो 0 से L/2 माइनस ऑफ L/2. दिस इज इक्वल टू 2DEH 0 to L/2 dq by 4 pi epsilon naught, ये R हो गए. दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. दिस इज इक्वल टू dq को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx, यहाँ dx लेंथ, x डिस्टेंस तक हम लेंगे, dx थिकनेस, तो यहाँ से हम लेंगे 2 0 to L/2 लैम्डा इंटू dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और dx की वैल्यू r इंटू d थीटा. dx अगर हम लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू, ये आर्क है dx लेंथ का, तो लैम्डा होगा, अगर हम ऐसे देख लें ये x डिस्टेंस पर अगर हम लेते हैं तो
dx की वैल्यू हमें चाहिए, तो x अपॉन a, x बाई a tan थीटा, तो x इज a tan थीटा मीन्स dx a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये dx की वैल्यू हो गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हमें चाहिए ट्वाइस 0 to L by 2 लैम्डा dx is a sec square theta into d theta upon 4 pi epsilon naught r square, and this is equal to r is equal to x square plus a square, x square plus of a square into cos theta. This is equal to 2 lambda a by 4 pi epsilon naught sec square theta into cos theta into d theta. X is equal to a tan theta. X this is equal to a tan theta means a square common 1 plus of tan square theta and 0 to L by 2. This is equal to a square से a cancel हो गई, 2 से यहाँ 2 कैंसिल, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, तो ये आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a इनटू cos थीटा इनटू d थीटा, cos थीटा इनटू d थीटा एंड 0 टू L बाई 2। अब हमें ये वैल्यू चेंज करनी है। यहां से अगर हम लेते हैं x की वैल्यू a tan थीटा है, लाइक x की वैल्यू अगर हम 0 तो थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी मीन्स लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये लिमिट तो 0। x की वैल्यू अगर हम L बाई 2 लेते हैं, L बाई 2, और a की वैल्यू है a tan थीटा, और a की वैल्यू हमें गिवन है √3, a की वैल्यू हमें गिवन है √3 L, √3 L बाई 2, √3 L बाई 2 इंटू tan थीटा, L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3 मीन्स थीटा इज 30 डिग्री, तो 0 से पाई बाई 6 cos थीटा इंटू d थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा मीन्स लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a इज √3 L बाई 2, और ये sin थीटा 0 टू पाई बाई 6, sin 30 डिग्री 1 बाई 2, 1 बाई 2 से 2 कैंसिल हो गए, लैम्डा ये आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट √3। अब हमें लैम्डा की वैल्यू अगर हम रखें तो लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यूब बाई एल, तो ये आ जाएगा क्यूब बाई एल, और एक एल ऑलरेडी नीचे है, तो लैम्डा इज क्यूब बाई एल और एक एल ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा क्यूब बाई 2√3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एल स्क्वायर। इसका रिजल्ट आएगा क्यूब बाई 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए सेक्शन 2, फर्स्ट क्वेश्चन, the circuit containing two diodes each with a forward resistance of 50 ohm with a infinite reverse resistance, if the battery voltage is 6 volt, the current through 120 ohm। ठीक है, ये जो डायग्राम गिवन है इसमें एक डायोड D1 और यहाँ रेजिस्टेंस है 130 ओम,
और यहां से एक डायोड है D2 और ये रेजिस्टेंस है 100 ओम D2 और यहाँ एक बैटरी है 6 वोल्ट की और इसके साथ है 120 ओम। अगर यहाँ से करंट फ्लो होगी तो ये करंट यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो ये करंट यहाँ से ऐसे रिटर्न आएगा ऐसे। तो टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल अगर हम लेंगे तो 130 प्लस 120 दिस इज इक्वल टू 250 ओम। वोल्टेज गिवन है करंट दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 250 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A person is standing on the spring balance inside a stationary lift measures 60 kg. The weight of that person if the lift is descending with uniform downward acceleration. तो m g dash m g minus of a this is equal to m g is 9.8 minus of 1.8 this is equal to m into this value is 9.9 minus 1 is 8 into 60 न्यूटन mg में means m 8m into mg this is equal to g is 10। अगर हम इसे 10 लेते हैं तो स्टेशनरी लिफ्ट this is equal to mg is 10, g की वैल्यू 10 गिवन है माइनस ऑफ 1.8 तो mg is मीन्स हमें m गिवन है एक्चुअली, तो 60 into 10 minus of 1.8 means this is equal to 8.2 न्यूटन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में गिवन है मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव इज 16 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम means amplitude carrier plus amplitude modulating, amplitude minimum amplitude carrier minus amplitude modulating। तो हमें कैलकुलेट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज म्यू एम्पलीट्यूड मैक्स माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड मिनिमम अपॉन एम्पलीट्यूड मैक्स plus of amplitude minimum। Max is 16, minimum is 8 upon 16 plus of 8 means 8 by 24, 1 by 3, 0.33। Next question number 4। Mass per unit length मीन्स म्यू हमें गिवन है 0.135 ग्राम पर सेंटीमीटर। द ट्रांसवर्स वेव ऑफ द फॉर्म y दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.21 साइन x प्लस ऑफ 30t। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टेंशन इन द वायर एज। अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टेंशन हमें कैलकुलेट करना है तो अगर स्पीड हम देखते हैं तो अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू।
स्पीड अगर हमें देखना है तो v इज ओमेगा बाई k, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t। अब म्यू हमें गिवन है ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट 135 10 टू पावर -6 सेंटीमीटर 10 टू पावर -2, तो ये 135 10 टू पावर -4, 135 10 टू पावर -4। ओमेगा इज 30, k इज 1, इज अंडर रूट t बाई 135 10 टू पावर -4। यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम 5th क्वेश्चन में लेते हैं, हमें गिवन है कंटेनर इज डिवाइडेड टू 2 चैम्बर by partition. The volume of the first chamber is 4.5 liter and the second chamber is 5.5 liter. ठीक है। The first chamber contains 3 moles of gas at a pressure of 2 atm and the second chamber contains 4 moles of gas at 3 atm. Means 2 chamber हमें कितने, 2 chamber है और इसकी वॉल्यूम है 4.5 लीटर और इसकी वॉल्यूम है 5.5 लीटर। इसमें नंबर ऑफ मोल्स है n is 3 और प्रेशर है 2 atm। इस चैम्बर में नंबर ऑफ मोल्स है 4 और प्रेशर है 3 atm। After the partition is removed, the mixture attain equilibrium. Then the common equilibrium pressure exists in the mixture is. हमें चाहिए common pressure find out करना। By law of conservation of energy, वैसे भी common pressure अगर कैलकुलेट करना है तो दोनों को मिलाकर वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो P1 V1 प्लस P2 V2, दिस इज इक्वल टू P इंटू V1 प्लस P2। P1 ये है, P2 ये है। तो अगर हमें यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो P दिस इज इक्वल टू P1 इंटू V1 प्लस P2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस P2। यहाँ से हम कॉमन प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में बॉडी पुश ए बॉक्स ऑफ मास 2 kg with a force of this on the frictionless surface. If the box was initially at rest, then the displacement along x-axis after 10 seconds. तो अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, फोर्स हमें गिवन है इज 20I प्लस ऑफ 10G, मास गिवन है 2 kg। तो अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो फोर्स अपॉन मास 10I प्लस ऑफ 5G। तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 10, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में 5। टाइम हमें गिवन है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0 और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। देन s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। s इज u इज 0, हाफ एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 10 into 10 का स्क्वायर मीन्स 100, 5। This is equal to 500 meter. Next question. Question number 7. अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द रेडिएशन इज इमिटेड बाय
1000 watt bulb and it generate an electric field and magnetic field at P placed at a distance of 2 meter. The efficiency of the bulb is 1.2%. The value of peak electric field at P is this. The value of X is. अगर हम पावर हमें गिवन है 1000 वाट और 1.2% ही एफिशिएंट, 1000 into 1.25 divided by 100. This is equal to 12.5 watt. और हमें डिस्टेंस गिवन है, तो अगर हमें ऐसा लेते हैं लाइक इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड इंटू एरिया, एनर्जी पर सेकेंड इंटू एरिया, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अगर हम एनर्जी डेंसिटी लेते हैं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई और डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो यहां से हम ये कैलकुलेट कर लें, एनर्जी डेंसिटी पहले हम देते हैं, एनर्जी डेंसिटी यू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू मीन्स एनर्जी बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम is equal to half epsilon naught into E square. Means energy, volume is area into length, volume is area into length U by area into distance, this is equal to half epsilon naught into E square. अगर हमें और इंटेंसिटी होती है एनर्जी, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो अगर हम यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू, या डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला और भी आता है कि अगर हम इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज या एनर्जी डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, यू ए इंटू डी। अगर हम इसको सी से मल्टीप्लाई कर दें, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी area into second is equal to into c half epsilon naught E square into c। तो एनर्जी पर सेकेंड दिस इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, दिस इज द इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर into c। अब हमें नोन है पावर, पावर इज 12.5, एरिया पाई, डिस्टेंस है 2 मीटर, इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 E इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द आरएमएस वैल्यू इनटू C इज 3 into 10 raised to power C। तो E आरएमएस की वैल्यू हमें मिल जाएगा। देन E नॉट, P की वैल्यू चाहिए √2 into E RMS। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है
Eighth question. In the electric circuit, a battery is connected to pass 20 coulomb of charge through it in a certain given time. The potential difference between the two plates of the battery is maintained at 15 volt. Work done हमें calculate करना है. V is W by Q. तो work W is V into Q. Potential difference is 15. Charge is 20 coulomb. तो ये finally ये जूल में आ गए. This is equal to 300. Ninth question. Figure shows a block root 3 kg is kept on the horizontal rough surface of the coefficient of friction is this value. हमें ये गिवन है, एक ग्राउंड है, यहाँ एक ब्लॉक है और फोर्स लग रही है ऐसे और ये एंगल 60 डिग्री. मास हमें गिवन है रूट 3 kg और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/3 root 3. The horizontal as shown in the figure, a block of mass root 3 kg is kept on the horizontal rough surface of the coefficient of the friction is 1/3 root 3. The critical force to be applied on the vertical surface as shown at an angle of 60 degree with the horizontal such that it does not move. इसका मतलब force of friction को बैलेंस करेगा. फोर्स लाइक यहाँ से हम पुश कर रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ और ये अप्लाइड फोर्स है. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस F cos 60 की इक्वल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इनटू m is F cos 60. Mu into mg. This is equal to F cos 60. Mu की वैल्यू 1/3 root 3 into m is 3 into g. G is 10. H F cos 60 is half. 3 से 3 cancel. तो F this is equal to 20 by root 3 Newton. Next question. Question number 10. In a series LCR resonant circuit, the quality factor is measured to be 100. Q factor की वैल्यू हमें 100 given है. Q value this is equal to 100. Inductance is increased by 2-fold and resistance means L dash given है 12 and resistance is decreased by 2-fold and R dash given है this. Then the quality factor after this change will be. तो हमें नॉर्मली Q फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है 1/r अंडर रूट ऑफ L by C और Q डैश हम लेते हैं तो 1/r डैश अंडर रूट ऑफ L डैश by C. तो Q डैश by Q अगर हम कैलकुलेट करते हैं दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L dash by C into R dash into R by into R C by L. C to C cancel. R upon R dash into L dash by L. R dash की वैल्यू है हमें गिवन है R dash R by 2. L dash की वैल्यू है 2L upon L. This is equal to 2. ठीक है बच्चे, ये कंप्लीट हो गया पेपर. ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है. ऑल द बेस्ट.